Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Today we are going to do part 4th of the chapter federalism. Till now we have completed 3 parts and I hope you have seen those 3 parts and they are completely clear to all of you, in which we have discussed basically meaning of term federalism. Along with that also we have discussed Nigerian point of view and West Indies structure of federalism, and in this last class we have discussed the federalism in the context of India. Along with that we have also discussed 3 list: central list, state list and concurrent list with residuary powers also. By that we have understood that which kind of federal structure is existing in India. I hope till here everything is completely clear to all of you, and today that we are going to discuss is federalism with a strong central government. Because from the starting I am telling you that although we are having federal structure, although federal word is not anywhere mentioned in our constitution, but even then we are having federal structure in our constitution. But that federal structure is not showing that there are equal distribution of powers. There is equal distribution of power that is not assured by this thing. Why? Because I have told you several times, our country is just like a garland, in which thread is the center, which should be and which must be very strong, so that problems of the country can be sorted out. So today we are going to discuss that in which manner our country federal structure is showing that yes, in our country center is more powerful, right? So now let us discuss it. It is generally accepted that the Indian constitution has created a strong central government. और हर कोई एक्सेप्ट करता है कि yes, in our country strong center is more strong in comparison of states. India is a country of continental dimensions with immense diversity and social problems. क्योंकि ये चीजें तो आपको बड़े अच्छे से अब तक समझ आ गई होंगी, because on each and every basis we are having huge diversity. We are having huge diversity on the basis of physiographic division, on the basis of society, on the basis of economic condition also, on the basis of culture especially. We are having huge diversity. तो सबको पता है कि इतनी ज़्यादा diversity और इतनी सारी social problems हैं in the country. The framers of the constitution believed that we required a federal constitution that would accommodate diversity. और इसीलिए हमारे constitution framers को क्या पता था कि हमें एक ऐसा structure बनाना पड़ेगा जिसमें क्या हो, एक federal structure हो. और क्यों हो, देखो, अगर हमें सिर्फ सेंटर को पावर दे दी होती तो प्रॉब्लम क्या होती कि सेंटर कहीं ना कहीं मोनोपोली एस्टैब्लिश करता, और जैसे मोनोपोली एस्टैब्लिश करता तो स्टेट्स की इंडिपेंडेंस अपने आप खत्म हो जाती. इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने पहले सारी की सारी सिचुएशंस को विजुअलाइज किया, ये फाइंड आउट किया कि हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी के साथ हम कैसे कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट वी हैव अडॉप्टेड फेडरल स्ट्रक्चर इन द बिहेवियरल अप्रोच, राइट? Because our constitution makers, they were in the belief that yes, there is a requirement of federal constitution, and for what? Just to accommodate diversity. But they also wanted to create a strong center to stem disintegration and bring about social and political change. इसके अलावा अब देखो सबसे important क्या चीज थी, because you also know it very clearly that at the time of independence we were having princely states, right? और अब सोच के देखो, वी वर हैविंग प्रोविंसेस आल्सो, ब्रिटिश प्रोविंसेस आल्सो, प्रिंसली स्टेट्स आल्सो, सम इंडिपेंडेंट थिंग आल्सो. अब सोच के देखो, अगर हमारी कंट्री ने ऐसा सिस्टम किया होता कि हमने सेंटर को वीक कर दिया और स्टेट्स को इतनी सारी पावर्स दे दी, बहुत ज्यादा पावर्स दे दी, तो नाउ व्हाट कुड हैव बीन द सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री कि अब सिर्फ स्टेट्स की मनमर्जी चलती ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ सेंटर आल्सो, राइट? इसीलिए हमारे फ्रेमर्स को, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को बड़े अच्छे से पता था कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो सेंटर को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करे. इट मींस ऐसा सिस्टम जहां पर सेंटर स्ट्रांग हो. और क्यों? ताकि अगर देखो, हम लोगों ने नाइजीरिया का एग्जांपल पढ़ा था, हम लोगों ने वेस्ट इंडीज का एग्जांपल पढ़ा था. वेस्ट इंडीज एग्जांपल में आपने क्या पढ़ा? इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन, है ना, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट. अगर हम लोगों ने भी अच्छे से फेडरलिज्म को अडॉप्ट नहीं किया होता, स्ट्रॉन्ग सेंटर वाले फेडरलिज्म को, तो हमारी कंडीशन भी वही होती, ना हम कभी यूनाइट होते, ना कभी पूरी तरह डिसइंटीग्रेट होते, तो वही सिस्टम होता. क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को ये चीजें बड़ी अच्छे से पता थी कि अगर हम ऐसा सिस्टम चाहते हैं तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाना पड़ेगा. और वो क्यों रिक्वायर्ड है? ताकि हम डिसइंटीग्रेशन को स्टॉप कर सके. एंड देयर कुड बी a, you can say, appropriate social and political change.
Along with that, it was necessary for the center to have such powers because India at the time of independence was not only divided into provinces created by the British, but there were more than 500 princely states which had to be integrated into existing states or new states had to be created. और सबसे बड़ा रीजन कि हमने स्टेट्स के रिगार्डिंग ऐसा प्रोविजन करना था और सेंटर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना था, उसका रीजन यही था क्या कि हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी कंट्री कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड थी, सिर्फ प्रोविंसेस स्टेट्स नहीं थे. प्रोविंसेस मतलब जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, हम लोगों ने पढ़ा था ना मैप हमारी कंट्री का. ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू देयर ईज, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, उन्होंने क्या किया हुआ था, हमारी कंट्री को डिवाइड किया हुआ था, राइट, जहां से उनको एडमिनिस्ट्रेशन ईजी लग रहा था. लेकिन फिर क्या हुआ, जब हमने इंडिपेंडेंस गेन की तो वी वर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, बट नॉट ओनली द प्रोविंसेस बट उसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स भी थे. अब ये प्रिंसली स्टेट्स क्या करेंगे, अब ये प्रिंसली स्टेट्स अगर इनको हमें इंडिया में मर्ज करना है, और हमने मर्ज कर भी लिया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स तो कैसे हैं, जिन पर किंग का प्रिंस का रूल चल रहा है, अगर हमने इनको इतनी ज्यादा पावर दे दी, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करवा दी, देन व्हाट दे विल ट्राई टू डू, दे विल ट्राई टू गेट मोर एंड मोर पावर्स, राइट. और इसीलिए क्या प्रॉब्लम होगी, जब वो ज्यादा से ज्यादा पावर्स को गेन करने की कोशिश करेंगे तो द प्रॉब्लम्स विल बी अराइजिंग दैट टाइम आल्सो, राइट. और इसके लिए हमें क्या जरूरी था कि हमें एक बैलेंस बनाना जरूरी था इन द प्रोविंसेस आल्सो एंड इन द प्रिंसली स्टेट्स आल्सो, ताकि कोई भी ये फील ना करे कि इसके पास ज्यादा पावर है, राइट. तो इसीलिए हम लोगों ने फिर क्या किया, इसलिए हम लोगों ने ऐसा सेंटर कहीं ना कहीं अपनी कंट्री में एस्टैब्लिश किया जिसके अकॉर्डिंग क्या हो, जहां पर हमारी कंट्री में ऐसा सिस्टम है कि सेंटर ज्यादा स्ट्रांग होगा, राइट. अब देखो यहां पे आपको वर्डिंग है टी कृष्णमाचारी की, ठीक है. अब उसके बाद ये क्या है, ये आपको क्या बोलते हैं कि लेट मी टेल माय ऑनरेबल फ्रेंड्स, कि मेरे ऑनरेबल फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं, क्या बताता हूं, कुछ बताना चाह रहे हैं हमें. अब देखो ये किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं हमारी कंट्री के फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है. अब उसके बाद ये क्या बता रहे हैं, हाउस दैट द ड्रिफ्ट इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टुवर्ड्स द सेंटर. अब ये क्या आपको बता रहे कि हर एक कंट्री में आप देखोगे ना, तो हमारी कंट्री में क्या होगा कि हमारी कंट्री भी उसका एक्सेप्शन नहीं है ना. अब उसके बाद वो क्या बताएंगे कि हमारी कंट्री भी क्या है, इट विल बी टिल्टेड टुवर्ड्स सेंटर, राइट. अब इसके बाद क्या बताएंगे, इसके बाद ये भी बताएंगे कि हर एक कंट्री का सेंटर ऐसा ही होता है. अब देखो ऐसा होता क्यों है, अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट. अब ये क्यों होता है, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि हमारी कंट्री का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस दैट हैव नाउ कम इनटू बीइंग, दैट द स्टेट्स हैव बिकम, राइट. और ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, कि आपके यहाँ सेंटर ज्यादा पावरफुल होगा, स्टेट ज्यादा पावरफुल होगा, राइट. तो उसके अलावा फेडरल हो सकता है, यूनिटरी हो सकता है. देखो फेडरल क्या होता है, फेडरल जहां पे हमारी कंट्री में क्या हो, फेडरल का मतलब जहां पे पावर्स का डिवीजन होता है. और यूनिटरी मतलब देखो क्या होता है, जहां एक ही हैंड से पावर कहीं ना कहीं डिवाइड हो रही है. जैसे आप लोग देखते हो ब्रिटेन में, तो सारी की सारी जो रूलर और अथॉरिटीज होती हैं वो कहां से, सेंटर से एक टाइप से स्टार्ट होती हैं. तो यही सिस्टम हो सकते हैं. उसके अलावा वेलफेयर स्टेट्स फ्रॉम बीइंग पुलिस स्टेट्स, है ना. अब देखो क्यों जरूरी है ये सारी की सारी चीजें, कि हम एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाह रहे हैं फ्रॉम अ पुलिस स्टेट, एंड द अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल एज फॉर द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द कंट्री. और इसके अलावा, और ऐसा हम लोगों ने क्यों बनाया, क्योंकि हम चाह रहे कि एक अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि देखो अगर स्टेट्स को इतनी ज्यादा पावर्स दे दी जाए, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर कंट्री, द प्रॉब्लम्स विल बी अराइजिंग ना. क्योंकि स्टेट्स फिर क्या करेंगे, दे विल बी वर्किंग फॉर देयर ओन बेनिफिट्स ओनली, देन हु विल बी रिप्रेजेंटिंग होल ऑफ द नेशन. क्योंकि जब हम स्टेट्स को इतनी ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करवा देंगे तो ऑफ कोर्स दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम, राइट. और अगर हमने ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करना है जहां वेलफेयर स्टेट्स की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं रादर देन पुलिस स्टेट, और जहां हम क्या चाह रहे हैं, एक अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी चाह रहे हैं फॉर द होल ऑफ द कंट्री, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और ये क्या बन चुका है, दैट्स व्हाई वी हैव अडॉप्टेड दिस सिस्टम, की जो हमारा सेंटर है वो ज्यादा पावरफुल होगा. और क्यों होगा, बिकॉज इट हैज बिकम द पैरामाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर. क्या हमारे सेंटर की पैरामाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें इकोनॉमिक वेलबींग प्रोवाइड करवाना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, और क्या करवाना, एक टाइप से वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड करवाना. एंड जस्ट टू गेन ऑल दीज थिंग्स, हमारा जो एक टाइप से फेडरलिज्म है वो टिल्टेड हम लोग कंसीडर करते हैं टुवर्ड्स द सेंटर, राइट. अब ये आप लोग क्या पढ़ रहे थे कि हमारी कंट्री में क्या सिस्टम है, हमारी कंट्री में फेडरलिज्म क्यों है स्ट्रॉन्ग,
सेंटर की तरफ क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने क्या फील किया, हम लोगों ने फर्स्टली हमारी कंट्री के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किया और ये फील किया कि हमारी कंट्री में स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी कंट्री का स्ट्रक्चर पॉलिटिकली कैसा है, कि कुछ हम क्या फील करते हैं पॉलिटिकली, हम लोग क्या फील करते हैं कि अगर हमने इतने ज्यादा, हम सोशली भी हम लोग इतने ज्यादा डाइवर्स हैं, कल्चरली भी इतने ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो अगर हमने इस डाइवर्सिटी को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया होता तो ऑफकोर्स यहाँ प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती, एंड दैट्स व्हाई इट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, राइट? अब उसके अलावा बिसाइड द कंसर्न्स फॉर यूनिटी, द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो बिलीव्ड दैट द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री नीडेड टू बी हैंडल्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कोऑपरेशन विद द स्टेट्स। और अब इसके अलावा अब देखो, हमारी कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुई तो ये तो प्रॉब्लम्स थी क्या कि हमारी कंट्री में कैसा सिस्टम होगा, ये तो प्रॉब्लम थी कि हमारी कंट्री में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, बट उसके अलावा जैसे यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट थिंग कि जैसे हम लोगों ने इंडिपेंडेंस गेन की वैसे हमारी कंट्री का पार्टीशन भी हो गया था, राइट? और जब जैसे ही पार्टीशन होगा तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? उसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वी विल बी फेसिंग, वी हैड टू फेस, राइट? क्यों? क्योंकि देखो जैसे ही पार्टीशन हो तो लॉट ऑफ पीपल दे हैड टू माइग्रेट इन पाकिस्तान एंड लॉट ऑफ द पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान दे एंटर्ड इन इंडिया। और हुई क्या थी, बात क्या हुई थी कि जितने लोग यहां से पाकिस्तान में गए उसके कंपैरिजन में जो पाकिस्तान से इंडिया में उनकी स्ट्रेंथ उनसे ज्यादा थी, ऑलमोस्ट डबल थी। तो हमारी कंट्री से तो कम लोग गए हैं, आए हैं डबल, तो इट मीन्स क्या होगा, नाउ द प्रॉब्लम विल बी हैपनिंग कि हमारी कंट्री में क्या होगा, जो हमारी कंट्री की सिचुएशन होगी व्हाट विल बी इट जस्ट लाइक दैट कि हमारी कंट्री में जो जितने लोग आए हैं हमें उनको क्या क्या प्रोवाइड करवाना है, ऑक्यूपेशन भी प्रोवाइड करवाना है, क्योंकि इतने टाइम तक तो ब्रिटिशर्स ने कैप्चर करके रखा, ब्रिटिशर्स ने छोड़ा ही नहीं कि उससे पहले हमारी कंट्री का क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। तो सेपरेशन के बाद व्हाट वाज द फॉरमोस्ट नीड, दैट वाज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, राइट? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब तक नहीं होता तो हम किसी भी एरिया में इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाते। एंड यू ऑल आर अवेयर कि हम लोग क्या कर रहे थे, ग्रेन्स भी मंगवा रहे थे दूसरी कंट्री से। तो यहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड में यही आया, वो यूनिटी के लिए कंसर्न थे, क्योंकि एक बार ऑलरेडी हमारी कंट्री का डिवीजन हो चुका है, राइट? तो इकोनॉमिक जो हमारी कंट्री की यूनिटी है उसके साथ साथ हमारी कंट्री की जो सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनको हमें बहुत प्रॉपर वे में टैकल करना था, हैंडल करना था। और ये कैसे हैंडल हो पाता, क्योंकि देखो अगर हमने इसको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया होता तो कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो बिल्कुल बाउंड्री के आसपास थे, वहां पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। तो इससे क्या होता है, इनबैलेंस डेवलपमेंट होता हमारी कंट्री का, दैट कुड बी इन द फेवर ऑफ प्रॉस्पेरियस स्टेट्स ओनली। बट अगर हमारा सेंटर स्ट्रॉन्ग है तो हमने क्या किया कि हमने वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करने की, वो किसको दे दी, सेंटर को। समझ आया? आप लोगों ने सुना होगा 5 ईयर प्लान हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाए, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ हमारी कंट्री में, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ, राइट? बेसिक डेवलपमेंट हुआ। तो ये सारी की सारी चीजें, तो हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता था कि अगर जितनी सारी प्रॉब्लम्स है ना उनको टैकल करने का देयर इज ओनली वन वे, और वो वन वे क्या है कि वो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सेंटर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, राइट? और हम लोगों ने क्या फील किया कि सेंटर स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए, बट देयर शुड बी अ कोऑपरेशन विद द स्टेट्स आल्सो। ऐसा नहीं है कि सेंटर की मनमानी चलेगी, राइट? मतलब सेंटर वर्क करेगा बट देयर विल बी द कोऑपरेशन ऑफ स्टेट्स आल्सो। Poverty, illiteracy and inequalities of wealth were some of the problems that required planning and coordination. क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत क्या थी कि पॉवर्टी थी हमारी कंट्री में, इलिटरेसी थी, इनइक्वालिटीज थी, वेल्थ की प्रॉब्लम थी। ये ऐसी प्रॉब्लम थी जिनके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी प्लान करने की और कोऑर्डिनेशन की। क्योंकि देखो अगर हमारे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर वीट बड़े अच्छे से ग्रो हो सकते हैं, अगर हम लोगों ने सेंटर को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया होता तो वो क्या कर सकते थे, उन सारे के सारे वीट को कैप्चर करके रख लेते, कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होने ही नहीं देते, फिर मनमाने तरीके से उसको पूरी की पूरी कंट्री में सप्लाई कर देते। दैट कुड हैव बीन हैपन ना। तो लेकिन हम लोगों ने इसको स्टॉप किया, व्हाई? बिकॉज वी वर हैविंग अ पावरफुल सेंटर, राइट? और इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, जो प्रॉब्लम्स थी, जो पॉवर्टी थी, इलिटरेसी थी, इनइक्वालिटीज थी, हमने उन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए एक नीड थी, रिक्वायरमेंट थी कि हमें एक प्लान की रिक्वायरमेंट थी और कोऑर्डिनेशन, सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन। Thus, the concerns for unity and development prompted the makers of the constitution to create a strong central government। और ये वो सारी प्रॉब्लम्स थी कि अगर हमने सेंटर को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया तो डेफिनेटली हमारी कंट्री प्रॉब्लम में आएगी ही आएगी। और वो क्यों आएगी, क्योंकि फिर स्टेट्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कर देंगे और वो हमारी कंट्री की
किसी भी कंडीशन से, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल नहीं था। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड में क्या आया कि हम एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम करेंगे, राइट। अब रीड करेंगे वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो हमारी कंट्री में स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को इंश्योर करते हैं, राइट। अब देखो, सबसे फर्स्ट है आपका, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट, राइट। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोगों ने लेजिस्लेचर वाला चैप्टर पढ़ा था, है ना, याद आ रहा होगा आप लोगों को। हमने उस चैप्टर में क्या रीड किया था? हमने उस चैप्टर में रीड किया था कि अगर मान लिया हमें दो स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बनाना है, एक स्टेट को तोड़ के उसको टू पार्ट्स करके उसको दो स्टेट्स में बनाना है, तो स्टेट की बाउंड्री, स्टेट की एग्जिस्टेंस भी पूरी की पूरी किसके हैंड्स पर डिपेंड करती है? हमारी पार्लियामेंट के हैंड्स पर ही डिपेंड करती है ना। आप लोगों ने क्या फील किया कि हमारी कंट्री में क्या, जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर को हमने जैसे मन चाहा वैसे क्या किया, उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। तो इट मीन स्टेट की एग्जिस्टेंस ही किसके हैंड्स पर डिपेंड करती है? हमारी कंट्री की पार्लियामेंट के हैंड्स में, राइट। वो जब चाहे स्टेट्स को खत्म कर सकती है और जब चाहे नए स्टेट्स बना सकती है। The parliament is empowered to form a new state by separation of territory from one state or by uniting two or more states. या तो वो क्या करे, एक स्टेट के दो स्टेट बना दे, उनको डिवाइड करके दो को मिला के एक बना दे। It can also alter the boundary of any state or even its name. ये बाउंड्री भी चेंज कर सकती है, उसके नेम्स को भी चेंज कर सकती है, right? The Constitution provides for some safeguards by the way of securing the view of the concerned state legislature. इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करवाता है हमें? सेफ गार्ड वे, किसके रिगार्डिंग, कि हम सिक्योर कर सके जो स्टेट लेजिस्लेटर है ना। हालांकि हमने क्या कर दिया, सेंटर को स्ट्रॉन्ग बना दिया ना, लेकिन फिर भी क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी मेथड आपको बताता है कि कहीं ना कहीं स्टेट लेजिस्लेचर और वो सारी की चीजें कि क्या हो सकता है, हमारी कंट्री में स्टेट लेजिस्लेचर कैसे वर्क करेंगी, ये कुछ सेफ गार्ड के मेथड्स भी प्रोवाइड करवाता है, ऑल्दो वी कांट डिनाई फ्रॉम द फैक्ट, राइट। तो फर्स्ट आप लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारी कंट्री में स्ट्रॉन्ग सेंटर क्यों फील करते हैं? हमारी कंट्री का सेंटर स्ट्रॉन्ग है बिकॉज वी आर एबल टू सी कि हमारी कंट्री में स्टेट का एग्जिस्टेंस ही डिपेंड करता है हमारी कंट्री की पार्लियामेंट के कंसेंट पे। इफ द पार्लियामेंट इज नॉट विलिंग टू फॉर्म द क्रिएशन ऑफ द स्टेट एंड इफ द पार्लियामेंट इज विलिंग टू द ज्वाइनिंग ऑफ टू स्टेट, इट इज easily able to do it, right? So first point is clear. Now second is the constitution has certain very powerful emergency provisions. आप लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने अभी तक यही पढ़ा ना कि अगर इमरजेंसी इंपोज होती है, इमरजेंसी का मतलब कंट्री नॉर्मल पोजीशंस में नहीं है, कंट्री इज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, राइट। तो उन प्रॉब्लम्स के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि उस इमरजेंसी को एक टाइप से एक्सेप्ट कौन करता है? दैट इज डन बाय द पार्लियामेंट ओनली, right, which can turn our federal polity into a highly centralized system once emergency is declared. और लेकिन देखो, जब emergency impose हो जाती है उसके बाद क्या सिस्टम चेंज होता है हमारी कंट्री का? जो फेडरल वाला स्ट्रक्चर है ना, ये यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर रीड किया था, and in that part we have studied in normal position there is no situation, there is no chance that our fundamental rights can be suspended. But suppose we are having problems, we are having internal disputes, और उसके साथ कौन से इंटरनल डिस्प्यूट्स, मतलब जो विद आर्म्स है, राइट, आर्म रिबेलियसनेस है, और उसके अलावा कंट्री पे बाहर से अटैक हो जाए, फाइनेंस की इतनी डेफिशिएंसी हो जाए कि हमारी कंट्री का वे है एडमिनिस्ट्रेशन वो प्रॉपर वे में नहीं चल पा रहा है, तो क्या हो सकता है? इट मींस क्या होगा कि उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट क्या इंपोज करती है, हमारी पार्लियामेंट क्या इंपोज करती है, दैट इज इमरजेंसी। और उस इमरजेंसी में क्या होता है? उस इमरजेंसी में हमारी कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है पूरे का पूरे यूनिटरी स्ट्रक्चर में। समझा? जैसे इमरजेंसी इंपोज हुई वैसे हमारी कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी पावर बिकम्स लॉफुल सेंट्रलाइज्ड, और उस टाइम पे हमारी पावर्स कैसी हो जाएंगी? सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगी, राइट। पार्लियामेंट ऑल्सो अज्यूम द पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट। और सबसे अलावा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारी पार्लियामेंट उस टाइम पे क्या वर्क करती है? एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की तरह वर्क करती है। जितनी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वो उस टाइम पे लॉ नहीं बनाती हैं, सारे के सारे स्टेट्स के लिए लॉ कहां से बन के आते हैं? हमारी कंट्री की पार्लियामेंट की तरफ से, राइट। उसके अलावा इवन ड्यूरिंग नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वेरी इफेक्टिव फाइनेंशियल पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो होगी चलो इमरजेंसी की बात, है ना। इमरजेंसी में तो चलो सिचुएशन इज नॉट फाइन, सिचुएशन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंट्री, बट अगर नॉर्मल सिचुएशन भी है तो वहां पर भी जो फाइनेंशियल टास्क होते हैं ना, फाइनेंशियल पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय द सेंटर ओनली,
इन द फर्स्ट प्लेस आइटम्स जनरेटिंग रेवेन्यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ना पूरी कंट्री के लिए हम एक यूनियन बजट प्रेजेंट करते हैं, राइट, कि इस चीज पे हमें इतना खर्च करना है, इस चीज पे इतना खर्च करना है, राइट। तो जो रेवेन्यू वगैरह है सारे के सारे रेवेन्यू जनरेटिंग और वो सारी की सारी चीजें वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में है, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। Thus, the central government has many revenue sources and the states are mostly dependent on the grants and financial assistance from the center. और क्या होता है कि सेंटर के पास तो बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, बट स्टेट्स के पास क्या होता है, स्टेट्स के पास ये होता है कि उनको नीड्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। किसकी नीड्स पर? उनको नीड्स पर डिपेंड रहना पड़ता है हमारे सेंटर की, फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। समझ आया? सेकेंडली, इंडिया अडॉप्टेड प्लानिंग एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्लानिंग इंट्रोड्यूस की ना, जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि हमारी कंट्री की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी एंड जस्ट फॉर दैट देयर वाज वेरी मच रिक्वायर्ड कि हम इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरिटी गेन करें। तो हम लोगों ने जैसे इंडिपेंडेंस गेन की उसके बाद हम लोगों ने रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्लानिंग्स करनी शुरू कर दी, राइट। सो प्लानिंग लेड टू कंसिडरेबल कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, जब वो प्लानिंग हुई ना, तो उन प्लानिंग में हम लोगों ने क्या फील किया कि जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज बन रही थी वो सारी की सारी सेंट्रलाइज्ड थी टुवर्ड्स द सेंटर ओनली। Planning Commission appointed by the Union Government is the coordinating machinery that control and supervises the resources management of the states. और जो हमारी क्या थी, प्लानिंग कमीशन एक सेंट्रल अथॉरिटी थी। आज भी आप लोगों ने नीति आयोग का नेम सुना होगा, हमने प्लानिंग से नीति किया है, ऑल इसका स्ट्रक्चर भी चेंज किया है। अब इसमें स्टेट्स के सीएम भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन जब प्लानिंग कमीशन हम लोगों ने बनाया तो प्लानिंग कमीशन क्या था, उसको अपॉइंट कौन कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, राइट। और इसके अलावा क्या हो रहा था, रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट, उसके ऊपर सारा का सारा कंट्रोल मैनेजमेंट, उसके ऊपर किसका कंट्रोल चल रहा था, किसका सुपरविजन चल रहा था, सेंटर का, राइट। बिसाइड्स द यूनियन गवर्नमेंट uses its discretion to give grants and land loans to the states. और देखो डिस्क्रेशन याद आया इस वर्ड से कुछ, हम लोगों ने पढ़ा था प्रेसिडेंट की डिस्क्रेशनरी पावर, मतलब मनमाने तरीके से कुछ, मतलब अपने विवेक के बेस में, नॉट मनमाने मतलब अपने विवेक से जो वो फील करते दिस इज करेक्ट दिस इज इनकरेक्ट, सेल्फ कंसेंस के बेस पे। तो मतलब यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी डिस्क्रेशनरी पावर यूज करती है फॉर व्हाट, जस्ट टू गिव ग्रांट्स एंड लोन्स टू द स्टेट्स। एंड दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड इन द लास्ट क्लास ऑल्सो कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि उस स्टेट में ना एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट बनी हुई है, तो इसीलिए क्या होगा, वहां पर ग्रांट कम दिया जाएगा, राइट। और ये मतलब क्यों, क्योंकि सेंटर की एक टाइप से डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किस स्टेट को कितनी ग्रांट देना चाहती है। एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज कंसीडर्ड lopsided and has led to charges of discrimination against states ruled by an opposition party. और ये वही हो रहा है जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूं कि क्या होता है कि फिर सेंटर क्या करने की कोशिश करता है, जहां उनकी पार्टी नहीं होती, उनके पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होती, उसे क्या ब्लेम लगता है। और कई बार ऐसा होता भी है कि उन स्टेट्स को ग्रांट ही नहीं दी जाती जिन स्टेट्स में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट वाली गवर्नमेंट बनी हुई होती है। फाइन, आई होप यहां तक आपको क्लियर है। 3 पॉइंट्स देखो, क्या क्या स्टडी किया आप लोगों ने, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि स्टेट का एग्जिस्टेंस ही हमारी सेंट्रल एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करता है, सेंट्रल एक ऐसे सेंट्रल कंसेंट पर डिपेंड करता है, राइट। उसके अलावा और क्या है, हमने इमरजेंसी के टाइम पीरियड में रीड किया, राइट। इमरजेंसी के टाइम पीरियड में क्या रीड किया, इमरजेंसी के टाइम पीरियड में ये रीड किया कि हमारी कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर कंप्लीटली यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी हम लोगों ने क्या देखा कि हमारी कंट्री के फाइनेंशियल असिस्टेंस पर डिपेंडेंसी होती है हमारे स्टेट्स की, है ना। मतलब यूनियन गवर्नमेंट जितना चाहे उतना ग्रांट दे देती है बिकॉज ऑफ इट्स डिस्क्रिशनरी पावर्स, राइट। उसके अलावा एज यू विल स्टडी लेटर द गवर्नर हैज सर्टेन पावर्स टू रिकमेंड डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों ने पढ़ा था जब हमने एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर रीड किया, उसमें हम लोगों ने गवर्नर पढ़ा था, और गवर्नर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दैट गवर्नर ऑफ एवरी स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राइट। लेकिन प्रेसिडेंट कौन है, सेंट्रल अथॉरिटी है ना, और सेंट्रल अथॉरिटी स्टेट्स में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं, राइट। तो गवर्नर क्या एक टाइप से सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है ना, राइट। और पूरी के पूरी मतलब स्टेट की असेंबली को डिसोल्व कब करना है, और वो किसके हाथ में हो गया, गवर्नर के हाथ में हो गया। स्टेट में अगर इमरजेंसी लगानी है, पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे मैंने हरियाणा में ये इमरजेंसी लगानी है, तो क्या वहां का जो गवर्नर होगा वो रिटर्न में किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा।
मतलब एक ऐसा पर्सन जो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है बट दैट इज हैविंग एक्सट्रीम पावर्स। समझ आया? तो ये भी क्या शो करता है दैट यस इन आवर कंट्री सेंटर आवर फेडरलिज्म इज टिल्टेड टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट, right? Besides, even in normal circumstances, the governor has the power to resolve a bill passed by the state legislature. है ना? आप लोगों ने सुना होगा कि उसने मना कर दिया, वीटो पावर यूज कर दी। और इसके अलावा अब देखो क्या होता है, इसके अलावा वो किसी भी बिल को रख सकता है प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए। दिस गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि देखो मान लिया उसने क्या बोल दिया कि वो किसी ऐसा कोई बिल पास करी किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, बट गवर्नर क्या करेगा, वो गवर्नर मान लिया लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया, लेकिन वो किसके लिए रख सकता है, वो अपने पास रख सकता है, रिजर्व करके रख सकता है, किसके लिए, फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट? This gives the central government an opportunity to delay the state legislation and also to examine such bills and veto them completely. और ये क्या प्रोवाइड करवाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी है भाई वो कि वो डिले भी करवा सकते हैं और उसके अलावा वीटो पावर भी यूज हो सकती है इन द रूल्स रेगुलेशंस फॉर्मेशन, राइट? Along with that, और क्या है, there may be occasions when the situation may demand that the central government needs to legislate on matters from the state list. कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि ऐसी सिचुएशन भी है जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि उसको ऐसे सिचुएशन पर नीड बनाने की जरूरत है, ऐसे मैटर पर लॉ बनाने की नीड है जो स्टेट लिस्ट के हैं। और ये कब पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल इफ द मूव इज रेटिफाइड बाय द राज्यसभा। हम लोगों ने लेजिस्लेटिव वाला चैप्टर पढ़ा था पूरा का पूरा, और उसमें हमने पढ़ा था इज इट नेसेसरी टू हैव सेकंड चैम्बर, और वहां हम लोगों ने राज्यसभा की स्पेशल पावर्स में रीड किया था कि अगर राज्यसभा चाहे तो वो किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को सेंट्रल लिस्ट में पुट कर सकती है, राइट? और कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द सेंटर आर सुपीरियर टू द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट। और ये भी क्या दिखाता है कि अब देखो सेंट्रल लिस्ट में मान लिया कोई सब्जेक्ट था और वो स्टेट लिस्ट की कैटेगरी में चला गया, तो ये भी क्या दिखा रहा है कि ऑफकोर्स सेंटर की ज्यादा पावर्स है और सेंटर सुपीरियर है इन कंपैरिजन ऑफ स्टेट्स। Furthermore, the central government may choose to give instruction to the state government. और इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमारी गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि वो क्या कर सकती है, इंस्ट्रक्शंस भी दे सकती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो all these provisions are telling to us that yes, in our country, center is more powerful in comparison of states. Although we are having federal structure, but we can't deny from the fact that in our country, center is more powerful. I think these all 4 points are completely clear to all of you. राइट? जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने इमरजेंसी की पोजीशन पढ़ी, हम लोगों ने और क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये रीड किया कि हमारी कंट्री में एग्जिस्टेंस ही किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट्स का एग्जिस्टेंस वो डिपेंड करता है पार्लियामेंट की कंसेंट के ऊपर। इमरजेंसी पावर हम लोगों ने रीड की, नॉर्मल पोजीशन में फाइनेंशियल असिस्टेंस हम लोगों ने स्टडी किया। आफ्टर दैट गवर्नर हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर ओनली, और वो क्या कर रहा है, ही इज इंटरफेयरिंग इन ऑल ऑफ द लेजिस्लेचर एस्पेक्ट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट। और उसके अलावा और क्या है, उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि जब हमारी कंट्री में अगर कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टेट लिस्ट का बट उसको सेंट्रल लिस्ट में बदलना है, तो इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द राज्यसभा ओनली, राइट? सो ऑल दीज पावर्स आर टेलिंग अस दैट यस इन आवर कंट्री सेंटर इज मोर पावरफुल. I hope till here everything is completely clear to all of you, but if you are having doubts, you can ask your doubts in comment section. We will meet in next video with new part of the same chapter. If you think that this video is beneficial for you, like the video and please subscribe the channel as well. We will meet in next video. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.